Thank you, Honorable Speaker, sir. I rise to express my strong support for the budget 2026-27, a budget that reflects the fiscal responsibility, strategic investment, and a clear roadmap for long-term economic transformation. Honorable Speaker, sir, میں آپ کے ذریعے سے آنریبل ممبرس جو اس سائڈ بیٹھے ہیں اور جو میری اپنی جماعت کے ہیں، آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک لائف ٹائم اپرچونٹی ہوتی ہے کسی ایم ایل اے کے لیے. ساری زندگی کی جدوجہد کے بعد کسی کو موقع ملتا ہے اس ہاؤس میں آ کے کھڑا ہونے کا. بہت سارے لوگ اس حسرت میں زندگی صرف کر دیتے ہیں، پر یہاں اس ہاؤس کے اندر موقع نہیں ملتا کھڑا ہونے کا. آج کے بعد نیکسٹ بجٹ میں مجھے موقع ملے گا اس طرح بات کرنے کا. سو گزارش یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے گورنمنٹ از ایز گڈ ایز اٹس اپوزیشن. جس طرح ٹریجری بینچ کی ریسپانسبلٹی ہے ہاؤس چلانے کی، اسی طرح بالکل آنریبل ممبرس آف دی اپوزیشن ان کی ریسپانسبلٹی ہے ہاؤس چلانے میں مددگار ثابت ہونے کی. حضرت علی کا ایک قول ہے، بات کریں تاکہ آپ کی پہچان ہو سکے. اور کل جب آنریبل چیف منسٹر صاحب یہاں بجٹ پیش کر رہے تھے، اس کے بعد جب میں یہاں سے باہر نکلا، بہت ساری چیزیں اپوزیشن کے لوگوں کی طرف سے میڈیا کے ذریعے مجھ تک پہنچی، اور اس کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ کس شخص کو میں کوٹ کروں جو نہ صرف آنریبل چیف منسٹر صاحب کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ایک رہنمائی اصول اور ایک اخلاقی معیار قائم کرے. تو مجھے حضرت علی کا قول یاد آیا، بات کریں تاکہ آپ کی پہچان ہو سکے. اور ساتھ میں کیا کہا کہ اپنے اس دشمن کے سامنے اپنی صفائی کبھی مت پیش کریں جس کو آپ کا حسد ہو، جس کو آپ کی جیلسی ہو، جو آپ کے قد کو چھوٹا کرنا چاہتا ہو، جس کی دشمنی کی وجہ خدائی فیصلے ہوتے ہیں، جس کی خواہشات کی تکمیل وہ صرف حسد، بغض اور تعصب کی بنیاد پہ کرنا چاہتا ہے. ایسے آدمی کے سامنے صفائی نہیں پیش کریں، اور نہ ہی صفائی پیش کریں اپنے اس دوست کے سامنے جس کا آپ کو معلوم ہو کہ یہ آپ کی بات کا اعتبار کرتا ہے. لداخ، جموں اور کشمیر کے اندر آنریبل عمر صاحب پر اعتبار کرنے والوں کی بہت بڑی فہرست اور بڑی تعداد ہے. ہمارے جو چیف منسٹر ہیں ان پہ صرف جموں کشمیر اور لداخ کے لوگ اعتبار نہیں کرتے، بلکہ برِ صغیر میں کئی ایسے لوگ ہوں گے. واجپئی صاحب نے کہا تھا کہ میں نے عمر صاحب کو انڈسٹریز سے نکال کے فارن افیئرس میں اس لیے بھیجا کہ میں ان کے اندر وہ سپارک دیکھ رہا ہوں جو اس ملک کے لیے رہنمائی کرے گی. منموہن سنگھ صاحب نے عمر صاحب کی پریزنٹیشن کے بعد کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو بہترین پریزنٹیشنز آج تک میں نے دیکھی ہیں، دس از ون آف دی بیسٹ. ہمارے پار، سرحد کے پار ہمارے دوست نہیں ہیں. دشمن جب تعریف کرے تو سمجھنا چاہیے کہ کوئی وزن کی بات ہے. پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ میں کشمیر کے کئی لیڈروں سے ملا ہوں، لیکن جو دانائی، دور اندیشی، جو ویژن میں نے عمر عبداللہ صاحب کے اندر دیکھا وہ کسی اور کے اندر نہیں دیکھا. جب کل وہ بجٹ یہاں پیش کر رہے تھے تو اقبال کا ایک بڑا عظیم شعر، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری پارٹی کا ٹائم ہے، مجھے آج بہت ساری چیزوں کی وضاحت کرنی ہے، اور جہاں آپ کو یہ لگے کہ میں کوئی بے مقصد بات کرتا ہوں آپ مجھے روک دیں. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو.
کہ اگر باپ کے علم میں سے بیٹے کے کردار میں کوئی کوالٹی انہیرٹ نہیں ہوتی، اگر شیخ صاحب کی جو شخصیت تھی، جو قد تھا، جو ویژن تھا، اگر آپ کو عمر عبداللہ صاحب کی باڈی لینگویج سے، ان کے کردار سے، ان کی گفتار سے، ان کے ایٹیچیوڈ سے، ان کے بات کرنے کے انداز سے، ان کے برداشت سے اظہار نہیں ہوتا تو پھر یہ ان کی لیگیسی کے حقدار نہیں ہے۔ لیکن جس طرح کا کنڈکٹ عمر صاحب نے سیاست میں اس وقت تک کیا ہے، جس بردباری کے ساتھ، جس تدبر کے ساتھ، جس اخلاق کے ساتھ انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ رویہ رکھا ہے اور پیش کیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر۔ سو جو وہ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، اگر یہ فیصلہ میرے تک ہوتا یا ہم تک ہوتا تو وہ اس کرسی پہ نہ ہوتے، یہ فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے، اور آپ ان فیصلوں کا انکار کر سکتے ہیں، آپ اپنے رتبے کو ان تک پہنچانے کے لیے جائز طریقے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ان کو نیچے لا کر اپنی سطح پر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ایک سنسیئرٹی بیسڈ پولیٹیشین ہے، ایک آنےسٹ انسان ہے۔ اس لیے جب یہ بات کر رہے تھے تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے پہلے کہا کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کنٹریبیوٹ کرنا۔ جب پچھلی بار بجٹ سیشن ہوا، اس سے پہلے عمر عبداللہ صاحب نے اپوزیشن والوں کو بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی پری بجٹ ڈسکشن کے لیے بلایا۔ ہمارے سامنے چیلنجز اس وقت کیا تھے، آج بھی کیا ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہماری اکانومی، ہماری اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے، ہمارے ملک کے جو پاکستان کے ساتھ تعلق ہیں اس کی وجہ سے جو بر صغیر تقسیم ہوا اور جو دشمنی کے بیج بو دیے ہندوستان، اس وقت کے ہندوستان اور اس وقت جو پاکستان بنا ان کے سیاستدانوں کے، انہوں نے یہ سارا پاس آن کر دیا ہم کشمیریوں کو اور جموں اور لداخ کے لوگوں کو۔ یہ اس صورتحال میں یہاں حکومت بنتی آئی ہے، یہاں حکومتیں چلتی آئی ہیں۔ پری بجٹ کے وقت ہمارے سامنے چیلنجز کیا تھے؟ چیلنج میں انڈر لائن کر کے یہ باتیں کرتا ہوں۔ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی نوجوان کو خواب دکھا کے سڑک پہ لے آتے ہیں، دس از اے ویری ڈینجرس ٹرینڈ۔ You can build a narrative, build it, but how will you undo it? ایک نیریٹو کشمیر میں بنایا گیا، نوجوانوں کو سڑکوں پہ لا دیا گیا، ایک نیریٹو بنایا گیا، نوجوانوں کو سرحد کے پار بھیجا گیا۔ اس کے بعد کیا ملا؟ جو کنفرنٹیشن تھی، جو طاقت کے بل بوتے پہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے تھے، جو اس نیریٹو پر جموں اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے، کہاں ہیں وہ آج؟ اور اس نیریٹو کو انڈو کرنے میں مجھے آپ کو اس ہاؤس کو کیا ملا؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے، کبھی شہر ان کے مٹ گئے، بستیاں بند ہو گئی۔ اس ہاؤس کو کیا ملا اس کنفرنٹیشن کے بعد؟ کشمیر کو کیا ملا اس کنفرنٹیشن کے بعد؟ لداخ کو کیا ملا اس کنفرنٹیشن کے بعد؟ جموں کو کیا ملا اس کنفرنٹیشن کے بعد؟ نفرت، احساس محرومی، ایک ایسی سیاست جو لوگوں کو جوڑنے کے بجائے تقسیم کرتی ہو۔ ایک آنریبل ممبر، ریسپیکٹڈ آنریبل ممبر بی جے پی کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، ریکارڈ پہ آپ چیک کر لینا، میں نے انٹرپٹ نہیں کیا، مجھے وہ انٹرپٹ نہیں کریں گے، کہ ہم تو آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام آدمی کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے سر، یہ مذاق نہیں ہے کہ ایک آنریبل ممبر اپنے اسمبلی کے تقریر کے دوران یہ کہے کہ ہم تو آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں ضرور ان سے یہ پوچھتا
कि इस नफरत की क्या वजह है। जवाब मेरे पास था, मैं कश्मीरी भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं। इसके बाद तो कोई तीसरी वजह नहीं, हिंदुस्तानी आप भी हैं, मैं भी हूं। मैंने कहा कि 34 करोड़ आबादी थी 1947 में। नफरत कुछ सैकड़ों दिलों में थी जिन्होंने मुल्क को तकसीम करके रख दिया। आज ये नफरत मल्टीप्लाई हो गई है। यू कैन नॉट काउंट इट ऑन फिंगर्स। आपके पास कागज खत्म हो जाएंगे, उन लोगों का नाम खत्म नहीं होगा जो नफरत का बीज बोते हैं, नफरत की सियासत करते हैं और इस मुल्क का धारा बदल दिया नफरत के रास्ते पे डाल के। हासिल क्या होगा? तासुब छोड़ नादा दौर के आईना खाने में। ये जो तासुब है इसने आदम को जन्नत से निकाल दिया। तासुब से क्या हासिल होगा? क्या है वो दावा जिसके पीछे दलील ना हो? हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कौल और फेल में अगर फर्क है तो उसको मुनाफिकत कहते हैं, हिपोक्रेसी। क्या कहा कर सजाद साहब ने? सिवाय माजी की उन दास्तानों के, आप एमएलए बने, आप इस हाउस का मेंबर बने, आप बीजेपी की पहले एक मिनिस्टर रहे, उसके बाद सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर रहे। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन दी गई, पहाड़ी लोग, गुजर लोग, ट्राइबल्स इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। ही प्लेड ए वेरी वाइटल रोल। उस वक्त ही सोचा इन्होंने कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट के बाहर किसकी रिपरकशंस क्या होगी। इन्होंने उस वक्त सोशल वेलफेयर मिनिस्टर की हैसियत से बड़ा कलीदी रोल अदा किया इन्होंने। पीपल आर हैप्पी विद हिम, पहाड़ी स्पीकिंग। लेकिन जब इन्होंने पहाड़ियों को और दूसरी कौमों को ऑन किया, आज डिसऑन क्यों कर रहे हो आप उन लोगों को? ये तो आपकी देन है। आपने कल कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर मेरे आई कांटेक्ट होगा तो बात होगी। ऑनरेबल स्पीकर सर कल इन्होंने बाहर कहा जो ये मेंबर सुसाइड हैं ट्रेजरी बेंच में, कहा कि इनको कुछ मालूम नहीं है, ये ऐसे ही तालियां बजाते हैं। आपको मैं बताता हूं, द मोस्ट डेंजरस थिंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज एरोगेंस। तकब्बुर इंसान को जब जलील करता है तो तकब्बुर इंसान को जलील करता है। हम कुछ नहीं जानते, फिर आप यहां बैठे क्यों नहीं है? आपको जवाब देना पड़ेगा जब आपने कहा आरएसएस इज ए रियलिटी इन द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने कभी नहीं कहा, आपने कहा, आपने ऑन किया आरएसएस को। कहां है आप? उसके बाद वहीद परा साहब ने कहा कल कॉपी पेस्ट है और ये जो बजट है इसमें कुछ नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं। वहीद परा साहब, 20 साल जब आप स्कूल में होते तब मैं पीडीपी के लिए काम करता था, हमने बनाई, उसके बाद आप आए डिक्टेट करने के लिए। हम तो घोड़े थे, हमारी मंजिल ही नहीं थी। आप सवार बन गए, आप मंजिल आपको मिल गई। आपको क्या पता है हमने धोखे में, सच या झूठ में क्या जिद्दोजहद की है? आपको मालूम है कि जब मुफ्ती साहब ने इंडिविजुअल लेवल पर मेंबर्स को बुलाया और कहा यह हिस्ट्री है, लेट मी स्पीक, मैं कभी नहीं बोलता अगर ये सियासत को उस लेवल पर लेके ना जाते जिस पर ये इसको लेके गए। पोस्टमार्टम लाजमी है सर। जब मुफ्ती साहब ने इंडिविजुअल लेवल पर हम सबको बुलाया और कहा क्या करना चाहिए, मैं ईमानदारी कहता हूं, मुझ पर उनके एहसान थे। मैंने कहा जनाब आपके जूते की नोक जिस साइड होगी मैं उधरी हूं, और ये हकीकत थी। लेकिन कहा तो भी कुछ तो बताएं आप। मैंने कहा आप हुकूमत बनाएं और आपको बनानी भी है बीजेपी के साथ, लेकिन आप दिल्ली जाएं, डायरेक्ट मिलें आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, उनसे कहें कि जो पिछला इलेक्शन था यह हमने नफरत की आखिरी हद पर जाकर लड़ा है बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी ने हमारे खिलाफ। अब यह अलायंस जम्मू कश्मीर में उसी सूरत में कामयाब होगा अगर आप इस हुकूमत के पीछे खड़े होंगे। अगर आप इस हुकूमत के पीछे खड़े नहीं होंगे, यह अलायंस आपको और हम दोनों को लेकर डूबेगा। 3 महीने तक बातचीत चलती रही,
एक एजेंडा ऑफ अलायंस साइन हुआ, उस साइंड कॉपी आज तक इसलिए नहीं है कि वो साइन नहीं हुआ। मार्केट में आ गया एजेंडा ऑफ अलायंस, मैं बताऊंगा उसमें बड़े बड़े दावे थे। आज ये कहते हैं कन्फ्रंटेशन, मैं इनको बताता हूं सियासत क्या होती है। इन सेक्शन शुरे से काट करें के वही बड़ा साहब, ये बच्चों का खेल नहीं है। 1% है आप इस मुल्क की इकोनॉमी का और 1% है आप इसकी आबादी का, और उसमें भी जब आप कौमों को अलग तकसीम करेंगे तो कितने रहेंगे हम। मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स क्या है। जब यहां से महबूबा जी और बेग साहब गए और अलायंस का ऐलान हुआ, अलायंस की कई वो एजेंडा ऑफ अलायंस की कॉपी होम मिनिस्टर साहब के पास थी। उन्होंने कहा देखेंगे साइन, देखेंगे क्या होगा। ये वापस आ गए, गवर्नमेंट बन गई। जब गवर्नमेंट बनी, मुफ्ती साहब ने यहां स्टेटमेंट दी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त यहीं थे। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूं, मैं मिलिटेंट्स का शुक्रगुजार हूं कि आपने कश्मीर में पुरअमन हालात में इलेक्शन होने दिया। मैं बेग साहब के पास था, बेग साहब उस वक्त दिल्ली थे। बेग साहब ने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इधर ही थे जब दो सोचें बन गई कि वी शुड विड्रॉ सपोर्ट। पूछ लो उनको, कसम दे दो ये सच है कि झूठ है। मुश्किल से मोदी साहब ने मामलात को संभाला, चले गए, लेकिन एक फैसला हो गया कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द कन्फ्रंटेशन। और साथ में एक लफ्ज इन्होंने कहा, इट वाज द बैटल ऑफ नर्व्स, मीन्स की वी वन, बिकॉज हमारे पास ड्राबू साहब थे, हमारे पास जबरदस्त क़यादत थी, इसलिए हम बैटल ऑफ नर्व्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने टकोर कर दी। जब वो यहां से चले गए, अब आ गई तनख्वाहें, अब आ गए मामलात लोगों के तरक्की के। ईड़ियां रगड़ते हैं हम, यहां हाथ रख के मैं कहता हूं ईड़ियां रगड़ते हैं हम। यहां से दिल्ली, दिल्ली से यहां, यहां से दिल्ली, दिल्ली से यहां। जो एजेंडा ऑफ अलायंस था मैं बताऊंगा, उसमें बहुत सारे पॉइंट थे। एक पॉइंट है कि इनको कहूंगा मैं जरा सुने, उसकी तशरीह करना और मुझे कह देना ये झूठ बोलता है। एक उसमें पॉइंट ये भी था कि ये टट्टू ग्राउंड खाली करना है। और पता है टट्टू किसको कहते हैं? टट्टू किसको कहते हैं मालूम है? गोबर, जो वो टट्टू, गोबर, घोड़ू का गोबर वो ढोने वाला, उसको टट्टू कहते हैं। टट्टू ग्राउंड भी खाली करवाना था। बजट है वो, ये बजट है और बजट है। तकलीफ क्यों हो रही? लेट मी स्पीक, यू सिट डाउन, सिट डाउन। आई एम यूजिंग माय टाइम, यू सिट डाउन। और नीचे बैठ, बैठ नीचे, बैठ नीचे, नीचे बैठ, नीचे बैठ। इसको कहें मेरे आप लोग, यू विल नॉट डिसाइड, यू विल नॉट डिसाइड, यू विल नॉट डिसाइड, यू विल नॉट डिसाइड, यू प्लीज सिट डाउन। लगाना इंजेक्शन था। Please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. Please take. टट्टू ग्राउंड। Paras Sahab. स्पीकर सर, Paras Sahab. Oh, Mr. मैं Paras. बात कर रहा हूँ। मेरे पास 341 मिनट है। बात यही होगी, बात यही होगी, बात यही होगी। मेरे पास 341 मिनट है। आई हैव 341 मिनट्स। बोलिए. उसमें टट्टू ग्राउंड खाली करना था। सेल्फ रूल हम बात करते थे। आई वॉज पार्ट ऑफ पीडीपी। हम सेल्फ रूल की बात करते थे, ड्यूअल करेंसी की बात करते थे। टट्टू ग्राउंड 3.5 साल में खाली नहीं करवा सके, और स्टेट थी और बीजेपी साथ थी। उसके बाद सुनते जाए, आप कहते थे ना कल यहां कि सरेंडर कर दिया है, सुनो, हिम्मत रखो सुनने की। उसके बाद हम लोगों को हुक्म हुआ कि मोदी साहब आ रहे हैं, जलसा करना है। यह समझते हैं मोदी साहब भी वाजपेयी साहब हैं। वाजपेयी साहब का जलसा हमने किया, जावेद साहब भी उस वक्त हम होते थे, हमने आप मारा उस वक्त। एक जलसा किया हमने मोदी साहब के जलसे में अशस कुरजार पार लू कैसे माना की
हमने गाड़ियों में बार बार के मिनटें करके लाई। अच्छा, पहले जमाने में ओपीएसओ एसपीओ उनको भी भरते थे, इस बार उन्होंने नहीं माना, क्योंकि यहाँ 2 लाड़ियां थी। यहाँ पुलिस के अंदर भी 2 पाप थे। एक वो थे जो डिवाइड हो गए थे कि करना है कि नहीं करना। मोदी साहब यहाँ आ गए, 1 लाख करोड़ का हमें कहा 1 लाख करोड़ का पैकेज आ रहा है। कितना सर? 1 लाख करोड़ का? नहीं, आपको मालूम नहीं है। लेट मी स्पीक। कहा ये 1 लाख करोड़ में, मैंने कहा इंटरप्ट करते हो यार, आप भी अपोजिशन वाले बनने लगे। बोले कहा 1 लाख करोड़ है। ऐसा ब्रक लगा, हमें दब लग रहे हैं कि इसमें आप मुलाजम भी आ जाएंगे, इसमें डेली वेजर भी आ जाएगा, इसमें हमारे जो काम है, कमिटमेंट्स लोगों के साथ है, वो भी पूरी हो जाएंगी। हमने दाव पे अपने आप लगाया, इधर उधर करके हमने एक जलसा कर दिया। जलसे में मुफ्ती साहब जैसे टावरिंग आदमी उठे, उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि इसके एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं, इसके इंटरनल डायमेंशंस हैं, और बात हकीकत थी, झूठ नहीं था। अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब उठे, उन्होंने कहा कि मुझे, आप खामोश रहे ना। उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप मुझे मशवरा मत देते जम्मू और कश्मीर पर, मुझे आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। हम सब उस वक्त पीडीपी में थे और बीजेपी के साथ एक ही घोड़े पे थे, दोनों जमातें सवार। यूथ के लिए क्या हासिल किया, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। इससे पहले कि आप आज इस हुकूमत पर उंगली उठाएं, वो पिछले फिगर्स लेके आओ। जिस बुनियाद पर आपने एजेंडा ऑफ अलायंस में जो कमिटमेंट्स की थी, जब आप कल तकरीर करेंगे, आप उमर साहब पर उंगली उठाने से पहले उसको लेकर आए। अगर आप कहते हैं कि हमसे गलती हुई, हमें सजा मिल गई, आपसे गलती हो गई, आपको सजा मिल गई, अब आप क्या चाहते हैं, वही गलतियां हम करें? आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए अपोजिशन वालों को, मैं बीजेपी के बारे में भी बात करूंगा, अपोजिशन वालों को मालूम होना चाहिए, हम सबको, कि कुछ तकाजे फितरत के हैं। और सियासत में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर उसको दीनी इल्म नहीं है थोड़ा बहुत, वो सियासत में कभी कामयाब नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि आप पनाह मांगे कन्फ्रंटेशन से। 3 बार कहा, पनाह मांगे कन्फ्रंटेशन से, पनाह मांगे कन्फ्रंटेशन से। फिर कहा कि मोमिन वो है जो खुद को रुसवा नहीं करता। रुसवाई क्या है, उसकी पूरे कंटेक्स्ट में जाके पढ़ना। रुसवाई ये है कि जब आप जानते हो कि जिस सिमत में आप जा रहे हैं ये तबाही और बर्बादी के रास्ते के बगैर कोई रास्ता नहीं है, तो फिर उसका मतलब है आप खुद को खुद रुसवा कर रहे हैं। आप चाहते हैं, कल कहा कि आप वहां गए, आपने शाल, आपको मालूम होना चाहिए हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जगह किसी को दावत भेजते थे, वो तोहफे भी साथ भेजते थे, कबूल भी करते थे। आप दुनिया में इंसानियत की बुनियाद ही इखलाकियात पर है। हमारे मुल्क के अदारों के साथ ना दुश्मनी है, ना बीजेपी के साथ दुश्मनी है, हमारे नजरियाती इख्तिलाफात हैं, जिसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। इसकी बुनियाद पर आप ये चाहते हैं, मैं इसमें आपको एक छोटा सा वाक़ा सुनाता हूं। गुलमर्ग से हमारा एक गांव का एक साथी आ रहा था, कलंतरा एक गांव है, ये फैक्चुअल बात है। वहां रीछ आ गया था और रीछ एक जंदर उसके घुस गया था। अब वो बेचारा खान साहब वहां से आ रहा था मूंछे ऊपर की तरफ करके। तो जो ये कश्मीरी स्पीकिंग लोग होते हैं, दे आर वेरी क्लेवर। इन्होंने कहा अगर कोई इलाज करेगा इसका तो ये खान करेगा। अब खान साहब ने घोड़े पर से छलांग मारी, कहा क्या मसला, का इसके नीचे रीछ है। ये न देखा इसने आव न ताव, उनकी तारीख में आगे उसमें घुस गया। जनाब जब वापस निकला उसका निस्फ मुंह ही नहीं था। यहां आप ये कहते हैं, मैं खुदा न करे किसी को रीछ नहीं कह रहा, आप ये चाहते हैं सब कुछ लुटा दिया हमने, सब कुछ लुटा दिया। वही मैंने कहा था, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा। ए नाकामी मेरा कारवान, मेरा सफर जो था, इसका जो मकसद था वो मेल्ट डाउन हो गया। अब दुख इस बात का नहीं है
कि मेरे सफर का जो मकसद था वो मेल्ट डाउन हुआ। दुख इस बात का है कि जो ये सफर जारी रखे हुए हैं, मुझे खुर्शीद को मालूम ही नहीं है हमारा गया क्या है। You have lost everything. You said that our special status is nothing. मैं बताता हूं आपको स्पेशल स्टेटस क्या है। लीडर ऑफ द ओपोजिशन सर, आर्टिकल 370 it defines the relationship, constitutional relationship between government of India, between the Union of India and state of Jammu and Kashmir. Constitutional relationship only. ये था आर्टिकल 370। आर्टिकल 385A much more important than आर्टिकल 370. It protected our land and our jobs. 2, our constitution, जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे था, लेकिन बहुत सारे मामलात में इंटरनल ऑटोनॉमी थी, हमने एक्सटर्नल सॉवरेनिटी सरेंडर की थी, इंटरनल ऑटोनॉमी नहीं की थी। इट वाज नेगोशिएटेड, इट वाज एग्रीड, इट वाज गारंटीड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। और उसके बाद हमारा एजेंडा जो थामे हुआ था मुल्क के झंडे को, हमारा एजेंडा हाथ था, ये वो हाथ था जिसने मुल्क का झंडा संभाल के रखा था। क्या कहा महबूबा जी ने, क्या अगर आपने छेड़ा तो मुल्क में क्या कश्मीर में एक आदमी नहीं होगा इस झंडे को थामने वाला। आपने चैलेंज किया, आज सुबह से शाम तक कानून से भरते हैं हमें डंडे, झंडे इधर से भर दिए। दिस इज व्हेन यू टेक कन्फ्रंटेशन, दिस इज व्हेन यू स्पीक विदाउट थिंकिंग, दिस आर द रिपरकशंस ऑफ दोज स्पीचेस जिसकी वजह से ये सारा हुआ। मैं बात कर रहा हूं जब आप आर्टिकल 370 आर्टिकल, एक मिनट प्लीज लेट मी स्पीक। आर्टिकल 370, लेट मी स्पीक प्लीज। आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, our constitution, our flag, when they are taken together, it becomes special status. This is what we want. This is what we passed in this assembly. तो आधी बात नहीं करनी चाहिए। अब रहा बीजेपी का ताल्लुक, नहीं सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। और सर नो, आई हैवंट इंटरप्टेड यू। सुने आप अपनी बारी पे सर, आप अपनी बारी पे बोले। आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, आप अपनी बारी पे बात करें। जरा यार थोड़ा पानी में बात। आप बैठो ना, बैठो, मैं सुन। अभी तक क्यों चुप थे? अभी तक क्यों चुप थे? अभी तक तो बोल रहा था। आप बैठो, चुप कर गए। आज आपके बाल निकालने हैं मैंने। आप तो बैठो ना, ये खड़े हैं, आप क्यों खड़े हैं? आपका लीडर खड़ा है। आपने जाती एलओपी पर क्वेश्चन उठाया, मैं जवाब दूंगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो 370 का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये जो पढ़ के आया, हमें पता है 370 क्या है। ये जो इंटरनल ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी की बात करते हैं, चिल्लाने से ये बातें नहीं कि ये सच है। मैंने क्वेश्चन किया है, जो वर्ड स्पेशल स्टेटस है, मैं फिर इस ऐवान में कहता हूं, अगर वर्ड स्पेशल स्टेटस आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मुझे दिखाओगे इन टर्म्स ऑफ के, मैं हर सजा भुगतने को तैयार है। इस चिल्लाने से व्हाट इज स्पेशल स्टेटस कहाँ है? बैठ जाए, आपको समझ में नहीं आएगा। You will not understand it. You will not understand it. अच्छा, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। चले आगे, आपकी बात। बैठ जाए स्पीकर साहब, बैठे प्लीज, बैठे। हाउस को ऑर्डर में लाए, आप तशरीफ रखिए। सर हाउस को ऑर्डर में लाए। आपकी बात आ गई, आ गई आप। सर सुने, आज मुझे पार्टी का टाइम है, लेट मी स्पीक। यार ये पार्टी है, 50 असेंबली मेंबर है इसके, आपको क्या पता है पार्टी क्या है? सर आप कोई बात नहीं, आप तशरीफ रखिए। इसको बोलो बैठो यार बैठो। मिनिस्टर साहब आप बैठो यार। हाँ, बता जल्दी। ऑनरेबल स्पीकर सर, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने एक बात बोली, जो कौमें
हिस्ट्री पढ़ते नहीं हैं, जो इन्होंने हिस्ट्री जानते नहीं है वो हिस्ट्री बना नहीं सकते. देयर इज डायर नीड, इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री पता होनी चाहिए. ऑनरेबल स्पीकर सर, इरफान साहब आ गए यार. इरफान साहब लेट मी स्पीक. आप अपनी बारी पर बात करें. बैठ आप फजूल में यार, पागल आदमी है. आज इनको मैं चितौर करूंगा, आप देखो. आप जरा लॉन साहब नहीं, बात सुने यार, बात सुने लोग. बैठे बैठे तशरीफ बैठे. आप बैठे रहे, मैं बताऊंगा. आप बैठो नीचे मेहरबानी करके. आप बैठे. आप कोई नहीं मारेगा यार, आप भरोसा रखें. या इकट्ठे बोलने से कुछ नहीं होगा. चले आप तशरीफ सीखो फिर. आप तशरीफ रखे ना, मेहरबानी करके तशरीफ रखें. मैंने देखो पुलिस साहब यार मैंने कमजोर पड़ गया. पुलिस साहब पुलिस टेक पर मैंने आपको पहले ही बताया है, बजट पर बहस होगी, सबको मौका मिलेगा. अपनी अपनी बारी पर आप वजाहतन बात कर सकते हैं. बीच में बात करने से कोई फायदा नहीं है. चलिए. ऑनरेबल स्पीकर सर, सर स्पीकर सर बोलो. एक मिनट सर, इस हाउस की जो एसेंस है उसको बरकरार रखते हुए ऑनरेबल एमएलए साहब जो बात कर रहे हैं, इसको पार्टी का टाइम है. और कल आपने कहा था कि जो लोग छूट गए हैं, जिन्होंने बजट के साथ साथ जिन्होंने गवर्नर एड्रेस पे बात नहीं करी, उनको आप मौका दे रहे हैं. मैं अपोजिशन बेंचेस से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको अपनी बारी पे, आपको जो बोलना अपनी बारी पे बोलिए, हम सुनेंगे यहाँ पर आप डिस्टर्ब मत करिए हमारे मेंबर को. इसको बात करने, इसको एवरी राइट हियर टू टॉक. तो आप अपनी बारी पे एलओपी साहब बताइए, जब झूठ पे नहीं, आप किसी को नहीं, आपका नहीं राइट बनता है. आपको हाउस डिजर्व करने का हक नहीं है. सो इनको अलाउ करिए बात करने का. सर मिर्ची लग गई और सुनो, मिर्ची लग गई. हम यही बोलेंगे. आप बैठे, मैं बताता हूँ. आप तशरीफ रखिए ना. तशरीफ. प्लीज टेक पर सीट्स. प्लीज. ये बात कर रहे हैं. आप बैठे.
को प्राप्त हुए हैं। कल जो यहाँ ऑनरेबल सीएम ने तकरीर की जिसमें लोगों को फायदा दे दिया, ये हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, रैंसम पे ले रहे हैं हाउस को। अपोजिशन यहाँ हर एक मेंबर का हक बनता है बोलने का और हर मेंबर को सुनना चाहिए। अगर ऐसा ही करोगे तुम टाइम ड्रामा कर रहे हो, उस हाउस का टाइम ड्रामा कर रहे हो, आप ड्रामा कर रहे हो। ये ड्रामा छोड़ दो और सुनो बात। स्पीकर सर मैं बात करना चाहता हूँ सर। मेरी यादाश्त में मुझे लगता है हिस्ट्री ऑफ दिस हाउस ये पहली बार होगा जब ऑनरेबल मेंबर बजट पे डिस्कशन कर रहा है और अपोजिशन वाले अपने चेयर पे खड़े होकर उसका प्रोटेस्ट करते हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा हिस्ट्री में, ये पहली बार हुआ है। आप सीनियर मोस्ट मेंबर्स यहाँ पर है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। हम पार्टी का टाइम है, हो गया आप इनको अगर ऐतराज है अपने टाइम पे बोलिए। चलिए बेटे, ऐसा साहब बैठे, करिए शुरू। बैठिए आप बैठिए, शुरू करिए आप एक साहब। I request honorable member of the opposition, leader of the opposition, that please don't attribute all the violence and the sufferings of Jammu and Kashmir to its special status. In fact, it was the gradual erosion of the special status beginning as early as 1952 that steadily weakened trust, dignity, autonomy that was agreed upon and guaranteed to us through the acts of parliament and constitution of India. This caused alienation, unrest, untimely cultivating in the tragic and unfortunate circumstances that we the people of Jammu and Kashmir have gone through. ये जो आप कहते हैं ना, ये जो आप कहते हैं 370 की वजह से एलिनेशन नहीं हुई, because of the alienation happened, it happened because Article 370 was eroded. आपने Article 370, 35A हमारी इंटरनल ऑटोनॉमी इसका जो इरोजन किया 52 से लेकर, ये उसका नतीजा है कि जम्मू और कश्मीर में मिलिटेंसी हुई। और जहां तक आपका ताल्लुक है, आप सुने आपके बारे में किसी ने क्या कहा है, आपके बारे में क्या कहा किसी ने। जो दाद तलब से कब है दिल। तो लीडर साहब बात सुने, तू दाद तलब से कब है दिल, पत्थर दिल पानी होते हैं। तुम लाख रजा की खू डालो, कब खूह सितम कर जाती है। बेदाद घरों की बस्ती है, यहाँ दाद कहाँ फरियाद कहाँ। सर फोड़ती फिरती है नादा, फरियाद जो कर जाती है। हाँ झांके से आकी हमको भी तशवीश है, मगर क्या कीजिए, हर राह जो उधर को जाती है मक्तल से गुजर के जाती है। आप क्या समझते हैं कि जितने लोग हम यहाँ जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर से या जम्मू से या पीर पंजाल से इलेक्ट होके आए हैं, हम आपके कहने पर जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस को, इनकी ड्रीम्स को, इनके सियासी हुकूक को आपके सामने सरेंडर करेंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक इसके लिए जिद्दोजहद करेंगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, अब मैं बजट की तरफ आता हूँ। ऑनरेबल स्पीकर सर, हाँ बोलिए। साथी जो बैठे हैं, कल से सबसे ज्यादा जिस चीज को ये फैला रहे हैं वो क्या अलम, इनको कुछ चीजें, इस वक्त सजाद साहब यहाँ होते वो कह रहे थे इनको कुछ नहीं मालूम। आज वो बाहर क्यों रहे, आज उनको मालूम हो जाता उनको भी। पुरानी दास्तानों के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बहरहाल सेंट्रल ग्रांट्स जो होती हैं, मैं इनके बारे में पहले बात करूंगा बजट के हवाले से। जो सेंट्रल ग्रांट्स हैं, आपको क्या लगता है कि ये यूनिक, दिस इज यूनिक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर? ये सेंट्रल ग्रांट सिर्फ जम्मू और कश्मीर को मिल रही हैं, जो बाकी रियासतें हैं वो हवाखोरी पे चल रही है। बात तो सुनो यार, हैव पेशेंस, अभी पूरी टकोर नहीं हुई, अभी टकोर आगे है, चलते जाए यार। जो टैक्स आप जमा करते हैं
उसमें से आप हमें क्या देते हैं? आप टैक्स में से सेंट्रल शेयर 39% आपका है, ये आप सिर्फ हमको नहीं देते हो, आप टैक्स कलेक्ट करते हो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? ये आप लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कन्फाइन रखा है बीजेपी तक। कन्याकुमारी से लेकर करना के उस गांव तक जिसमें प्लेबिसिट हुआ था कि आप पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे कि हिंदुस्तान का, और उस गांव ने हिंदुस्तान का हिस्सा बनने का फैसला किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रीट वहां तक चलती है और जिम्मेदारी भी वहां तक बनती है, फाइनेंशियल भी और पॉलिटिकल भी। लिहाजा जो आप ये समझते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज देयर बिकॉज ऑफ यू, यू आर हियर बिकॉज ऑफ देम, यू आर हियर बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ मोदी साहब। You should be thankful to him. 39%. बिल्कुल। बात सुनो पीडीपी की नीयत ठीक थी या जो हमारी। आप देखें सर, आप देखें, लेट मी सी, आप देखें, आप पहली बात, आप बैठे ना मेहरबानी कर। लेट मी स्पीक। पहली बात ये कि जो सेंट्रल शेयर है, दिस इज नॉट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर ओनली, इट गोज टू एवरी स्टेट, एवरी यूनियन टेरिटरी। सो इसमें अगर आप बंद करवाना चाहते हैं जाके बंद करवा दें, और उसमें भी मैं बात करूंगा, जरूर सुननी पड़ेगी आपको। दूसरा हो गया, ये कह रहे थे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। आपने कहा एक जर्नलिस्ट, इनका एक जर्नलिस्ट है, वो ब्लैक बोर्ड लेके, इनका एक जर्नलिस्ट है, वो ब्लैक बोर्ड लेके एक्सप्लेन कर रहा था कि ये हुकूमत जो है ये बस कुछ नहीं है। हाँ? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का शेयर 12% है सर टोटल। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स है वो 12% है। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी क्या है? इसमें सेंट्रल शेयर जो डायरेक्ट सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है वो भी। भाई आपको क्यों तकलीफ हो रही है? प्लीज सिट डाउन, प्लीज लेट मी स्पीक। मैंने कभी आज तक आपको इंटरप्ट किया है? मैंने जिंदगी में कभी आपको इंटरप्ट नहीं किया। तो यू विल करेक्ट मी, आप करेक्ट करना, आप करेक्ट कर देना। उसके बाद फुल्ली फंडेड स्कीम्स, हमारी अपनी जो टैक्स कलेक्शन है वो 18% है और बोरोइंग हमारी 15% है। अब आप सुने Murtad Saab, you are not the only educated person here. We are more educated and qualified than you. आप भी तकरीर करेंगे, आप भी तकरीर करेंगे। मैं कहता आपको भी तकरीर करेंगे, उसको भी बताइए क्या बोलते हैं। बैठे बैठे, फिर आपको भी ये बोलने नहीं दे देंगे। बैठो ना, जब ये तकरीर करेंगे उसके बाद आप करो, कोई एतराज नहीं है। सर हाँ, चलिए चलिए चलिए, बेग ये देखो, प्लीज सिट डाउन। चलिए। अब सर जो ये सेंट्रल, ये जो टोटल सेंट्रल डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो सारे मुल्क में है और 12% वो यहाँ भी है, जिसमें PMGSY आ गया, CRF आ गया, या हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वो डायरेक्ट 2-2 हज़ार रुपया या क्या देते हैं, ये वो स्कीम्स हैं। और ये भी यहाँ ही नहीं है, सारे मुल्क में है। अब जिस तरीके से अपोजिशन वाले ये बात इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये सारे का सारा जो है सेंट्रल फंडेड है, आप फर्ज करें एक लम्हे के लिए ये मान लेते हैं कि हमें जो भी पैसा मिलता है वो मुल्क की वजह से मिलता है और मुल्क से सारा पैसा आता है। एक फर्ज करें ये, अगर ये आता भी है, क्या जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान नहीं है? ये पहला सवाल है। जम्मू और कश्मीर के हवाले से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिन रियासतों के हवाले से, ये यूनियन टेरिटरीज के हवाले से मरकज की हुकूमत की है, उसमें सरफहरिस्त जम्मू कश्मीर आता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। एक बॉर्डरिंग स्टेट, एक तरफ आपको चाइना है, दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमारे उस कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, चाइना हमारे इस साइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। उनको कोई ताना नहीं देता, उनको वहां के जमातों के लोग ताना नहीं देते कि ये आपको पर कोई एहसान कर रहा है। इस पर मैं आपको
एक मिसाल एक देता हूं सर, आपको मालूम है सिंगापुर और मलेशिया ये इकट्ठे हुआ करते थे, और जो मलेशिया है वहां एक सोच बन गई कि ये सिंगापुर हम पर बोझ है, इनका पानी भी अपना नहीं, हमारी इकोनॉमी को ड्रेन करते हैं। और कुछ सियासतदान वहां ऐसे उठ गए जो हर बात पर सिंगापुर वालों को ताना दें, आप बोझ हैं बोझ हैं बोझ हैं, और इसके साथ एलिनेशन बढ़ते बढ़ते फाइनली यह हुआ कि उन्होंने सिंगापुर को अलग कर दिया। और सिंगापुर ने क्या किया, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अपनी सारी एनर्जी लगा दी। आज मलेशिया से सिंगापुर की इकोनॉमी बेहतर है। मैं यह कहना क्या चाहता हूं, मेरी बात सर दर्द है एक, वो सुने, मेरी अर्ज सुने आप, और उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं सुने। जम्मू और कश्मीर में हमारी सारी इकोनॉमी का दारमदार है यहाँ की सियासी सूरत हाल पे, जिसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। यहाँ के टूरिज्म पर जो इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल अनरिलायबल हालात, वही कि कहीं कुछ हो गया तो वो खत्म हो जाएगा। हार्टिकल्चर, एक अच्छी नेशनल हाईवे इस वक्त तक हमें मैसर नहीं है। 75 साल में हमारी कनेक्टिविटी यहां से सियालकोट से होती थी, सारी ट्रेन सियालकोट से आती थी, हाजी पीर से आती थी। हम यहां जब गए ये सारा बंद हो गया। अब आप जब यहां ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे तो एहसान तो नहीं करेंगे। अब हम क्या सोचते हैं, हमारी गवर्नमेंट का विजन क्या है वो आएगा, ये मैं सारा कुछ नहीं बात कर सकता। हम ये सोचते थे कि हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करेंगे। जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग, ऐसे नौजवान हैं कि अगर इनको हम ट्रेन करें, इनको हम एजुकेट करें, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस तरह के स्ट्रक्चर को बिल्ड करें जिसकी वजह से यहाँ के नौजवान मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जाएं, कोई बम्बई में जाए, कोई कलकत्ता जाए, कोई आसाम जाए, कोई कहीं जाए, लेकिन करें क्या? मुझे बताएं, जब मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर या एक गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के अंदर इतनी रेडिकलाइजेशन हो जाए कि जहां पर आप जाएं एक शाल बेचने वाला मजदूरी मुशक्कत करने वाला, जब उसको उसके मजहब की वजह से या उसका कश्मीरी होने की वजह से पनिश किया जाए, मुझे ये बताएं कि हमारी इकोनॉमी किस तरह से उस सतह पे जाके ग्रो करेगी जहां अपने मुल्क के अंदर जो इंस्टीट्यूशन हैं उनमें हमारे कश्मीरी स्टूडेंट्स को ताज्जुब की नजर से देखा जाए। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो ये मेडिकल कॉलेज का जो इशू हुआ, इसमें आप देखें, इसमें मजहब को तलाश किया गया, इसमें ये इस लेवल पर गए कि इसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाए, ये कश्ती ही जला देंगे, मगर इसमें हम मुसलमान को नहीं चढ़ने देंगे। हम भी इसी किनारे पे सारी उम्र गुजार देंगे, पार हम भी नहीं जाएंगे, पार चूंकि मुसलमान भी इसमें बैठेगा, इसको नहीं जाने देंगे। जब इतना गुस्सा, इतनी नफरत आपके इंस्टीट्यूशन से रिफ्लेक्ट होगी, सबसे बड़ी सियासी जमात के अंदर ऐसे अफराद होंगे जो इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, और जो इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट की, और जो इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जुडिशरी की, जब वो भी तलाश करेंगे मजहब को, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, तो टू नेशंस थ्योरी, मरी हुई थ्योरी को जिंदा कौन कर रहा है? ये कि हम, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि एक ही तरीका है इस सफर को आगे जारी रखने का, जो तू समझे तो आजादी है पोशीदा मोहब्बत में, गुलामी है असीर इम्तियाज मावतू रहना। एक ही तरीका है कि यह मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, वो ये है कि आप माजी को भूल जाएं। आपको मैं बताता हूं सर, इनको भी मालूम होना चाहिए, हिंदुस्तान के जो बड़े जबरदस्त लोग हुए हैं उसमें अशोका द ग्रेट एक थे। अशोका ने हुकूमत जब हासिल की, अपने भाइयों को एग्जीक्यूट किया, 100 भाइयों को उसने कत्ल किया, फिर जाकर उसको हुकूमत मिली। औरंगजेब साहब ने अपने भाई को एग्जीक्यूट किया, दारा शिकवा को, अपने बाप को जेल में रखा इक्तदार की खातिर। जब कोई इक्तदार में होता है उसका कोई मजहब नहीं होता सिवाय इक्तदार के। जो हिंदुस्तान में हमलावर आए, मैं उनमें से किसी को भी मुसलमान तस्वुर नहीं करता। यहां आए, अगर उन्होंने ज्यादतियां की है, अल्लाह उनकी पकड़ करेगा, अल्लाह उनको जलील कर देगा, उस दुनिया में रुसवा करेगा।
जिन्होंने मजहब के नाम पर जहां आके लोगों के साथ जुल्म किया। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि तारीख को हमने दोहराना है, जो किसी दौर में किसी मुसलमान से गलती हुई, हुक्मरान से, हमने उसका बदला आज के मुसलमान से लेना है, तो मुझे ये बताएं उसके बाद हम आपके बारे में क्या राय कायम करें। रहा इस इंस्टीट्यूशन का सवाल, इसमें बात करनी होगी कि या नहीं करनी होगी। मुझ जैसे लोग आते हैं जाते हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जिस तरह आप इस हाउस को ट्रीट कर रहे हो, जिस तरह आप जम्मू कश्मीर को ट्रीट कर रहे हो, जिस तरह आप यहां से वहां जाकर गलत बयानी से काम लेते हो, यह आपके शान निशान नहीं है। दो मिसालें मैं दे दूंगा सर। एक मिसाल, मेरे इनके साथ बड़े करीबी तल्लुकात हैं, वो सामने बैठे लीडर ऑफ द अपोजिशन। इन्होंने अपनी तकरीर में लास्ट टाइम कहा कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने हिंदुस्तान के आईन के तहत हलफ उठाया। यहां से शोर उठा, भाई हम आज तक फार्म भरते हैं, हिंदुस्तान के आईन हमारा मुल्क है, उसके आईन का हलफ नहीं उठाएंगे तो किसका उठाएंगे? और जो बेईमानी करके उसका हलफ उठाएगा, अल्लाह ताला उसको समझेगा खुदा के नाम पे हलफ लेता हूं। खुदा को कोई बेवकूफ नौजुबिल्ला नहीं बना सकता। मैं खुदा को ना, उस अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, आई एम एन इंडियन बाय बर्थ एंड बाय कन्विक्शन। ये सवाल पैदा नहीं होता कि एक इस मुल्क के साथ मैं वफा ना करूं। ये उठे, शोर उठ गया। इन्होंने कहा मैंने जो ही मुल्क के आईन की बात की, आप लोगों को मर्जी क्यों लगी? और फिर क्या हुआ? बाहर जाकर सर तरफ ये फैला कि जो एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इन्होंने हिंदुस्तान के आईन के नाम पे शोर मचाया। जनाब, आपने मिसलीड किया। वक्ती तौर आपको इसका फायदा हुआ होगा, वक्ती तौर आपने कन्वे कर दिया होम मिनिस्टर साहब को, जनाब मैंने बात की थी मगर मुई तशन्नुम सुधर, अभी ये सुधर नहीं रहे, है ना। वहां दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, मेरे छोटे भाई हैं वहीद बरा साहब। देखिए, मैं इनको एक और बात भी आज यहां बताऊंगा और उसी के साथ तकरीर खत्म करूंगा। इस वक्त इन्होंने रेवेन्यू पे अपनी बिल लाई। रेवेन्यू पे जब इन्होंने अपनी बिल लाई थी, याद है ना आपको, जब ये खड़े हो गए रेवेन्यू बिल पे और इन्होंने कहा मैं प्रेस करता हूं वोटिंग के लिए, और वीडियो निकालें। फयाज साहब कहां थे? ही एब्सटेन्ड। नो सर, यू आर आउटसाइड। वहीद बरा से पूछ लेना, ये जो थे ये यहाँ नहीं थे। आप वीडियो निकाल लेना, अगर होंगे तो मैं माफी मांगूंगा, पर ये नहीं थे, इनमें से कोई यहाँ नहीं था। वहीद बरा साहब अकेले थे यहाँ। अगर ये थे भी, ये शासा छुप करी दिशन है का एफर्ट करी का इस नाराज करूँ, इसको आपको पता है इसकी अपनी मजबूरियां हैं। चलिए सुने, हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग मिल के अगर आगे चलेंगे, इस हाउस का तकद्दुस बहाल होगा, यह हाउस इंपावर होगा, तो इसके जरिए से जम्मू और कश्मीर जो है ये तरक्की के रास्ते पे आके गमजन होगा। बाकी रहा बजट, सिंपल वर्ड्स में सिर्फ ये होता है कि हमारी आमदनी कितनी है और इस आमदनी को खर्च कैसे करना है। इसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या किया है, ये 1 मिनट में मैं कंक्लूड करता हूं। 1 मिनट देखें सर, फाइनेंशियल सपोर्ट, चलिए फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर AA families फॉर 6 free LGP सिलेंडर्स पर ईयर, ये कमिटमेंट थी, पूरी हो गई। डेवलपमेंट ऑफ 2 emergency and trauma hospitals at उड़ी एंड पुंछ, बहुत बड़ी कारनामा है। प्रोवाइडिंग फ्री बस सर्विसेज फॉर डिफरेंटली एबल्ड पैसेंजर्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बहुत बड़ा कारनामा है। फाइनेंशियल रीइंबर्समेंट ऑफ फी फॉर AAY फैमिली स्टूडेंट्स इन क्लास 9 to 12, बहुत बड़ा कारनामा है। DBT फाइनेंशियल रीइंबर्समेंट ऑफ फ्री AAY फैमिली स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस, यह बहुत बड़ा कारनामा है। स्पॉन्सरशिप टू 6,000 ऑर्फन्स अंडर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, यह बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन एक और चीज है जो बहुत बड़ा कारनामा है, जिस पर मैं उमर साहब को मुबारकबाद दूंगा। जो जम्मू कश्मीर में स्पेशल चिल्ड्रन हैं, डिसेबल्ड, जिनकी कोई पुरसान हाल नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, उस सिलसिले में आपने बारामूला में और स्पेशली एबल्ड जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए आपने एक अच्छी शुरुआत की है। ये बच्चे जो हैं इनके लिए आपने शुरू किया है बारामूला और अनंतनाग से। मुझे उम्मीद है कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में होगा और फिर कोशिश ये करनी है कि इस तरह के बच्चों को जो एक
हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है उनके हवाले से, वो ये पूरा करेंगे। बाकी रहा बजट के फिगर्स पे बात करने वाले, अगर आपने आगे मौका दिया तो आगे बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलो जरा 1 मिनट तशरीफ रखिए।